हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पार्ट डी में पूछा गया और क्वेश्चन है लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt is equals to y raised to the power 5k plus 2 for t greater than 0 and the condition is y of 0 is equals to 0. Which of the following statements is true? First one is it has unique solution which is continuously differentiable on 0 to infinity. Second one is it has at most two solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity. Third one is it has infinitely many solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity. And fourth one is it has no continuously differentiable solution on 0 to infinity. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है जब y dash is equals to y raised to the power alpha where alpha belongs to open interval 0 to 1 and condition is y of beta is equals to 0 where beta belongs to set of real number. So this problem has infinitely many solution. इस प्रॉब्लम के पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to y raised to the power alpha where alpha belongs to upper interval 0 1 and y of beta is equals to 0 then इसके पास infinitely many solutions होंगे. इस केस में हमें k जो given है वो है हमारा पॉजिटिव, सो 5k भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा और 5k अपॉन 5k प्लस 2 ये हमारा 0 से 1 से तो लेस देन होगा बट 0 से ग्रेटर होगा. सो यहाँ से जो 5k अपॉन 5k प्लस 2 है ये हमारा लाई कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1 में. कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0. सो बाय दिस रिजल्ट इसको अगर हम इक्वेशन 1 से डिनोट करें, इक्वेशन 1 हैज infinitely many solutions. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास infinitely many solutions हो जाएंगे. थर्ड ऑप्शन है it has infinitely many solutions which are continuously differentiable. सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट बी में पूछा गया था. क्वेश्चन है लेट y नॉट is greater than 0 and z naught is greater than 0 and alpha is greater than 1. Consider the two differentiable Consider the two differential equation. हमें दो differential equation given है. First is star one dy by dt is equals to y raised to the power alpha for t greater than 0 and y of 0 is equals to y naught. Second problem is dz by dt is equals to minus z raised to the power alpha for t greater than 0 and z of 0 is equals to z naught. We say that the solution to a differential equation exists globally if it exists for all t greater than 0. So which of the following statement is true? First, both star and double star have global solution. Second one is none of the star and double star have global solution. Third one is there exists global solution for star and there exists a t less than infinity such that limit when t tends to t modulus of zdt tends to infinity. Fourth one is there exists a global solution for double star and there exists a t less than infinity such that limit t tends to t modulus of yt is plus infinity. सो हमें दो प्रॉब्लम गिवन है स्टार और डबल स्टार. इसमें हमें बताया गया कि इस प्रॉब्लम के पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के पास ग्लोबल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है दोनों के पास करेंगे, ये किसी के पास भी नहीं करेंगे. अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स के पास ग्लोबली सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो अगर हम y नॉट z नॉट और अल्फा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी कंसीडर कर लें तो भी हमारे पास ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. सो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट y naught is equals to 1 and z naught is 1 and अल्फा की वैल्यू 2 कंसीडर कर लेते हैं. सो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं dy by dt is equals to y square.
अल्फा की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की, सो dy by y square is equals to dt. नाउ इंटीग्रेट जब हमने किया -1/y is equals to t plus c. नाउ हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 is equals to y0 को हमने 1 कंसीडर किया, सो -1 is equals to 0 plus c. तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, सो -1/y is equals to t -1. ओवरऑल y की वैल्यू आ गई -1 अपॉन t -1, 1 अपॉन 1 माइनस टी. अब अगर हम y को देखें, जब t की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जो 1 है वो हमारा 0 से ग्रेटर है. इसका मतलब t की वैल्यू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 के लिए y डिफाइंड नहीं है. दिस implies that for star solution is not globally defined. स्टार प्रॉब्लम के लिए तो ग्लोबली डिफाइंड है नहीं, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों के लिए ग्लोबल सोल्यूशन है, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाता है. नाउ सेकंड में क्या है, dz by dt is equals to z square and condition है z at 0 is 1, so dz over z square is equals to dt. -1 over z is equals to t plus c. So एक्चुअल में जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर z रेज टू द पावर अल्फा के साथ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव, सो ओवरऑल हो जाएगा हमारा पॉजिटिव. सो कंडीशन हमें गिवन है z ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c. c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, सो 1 over z is equals to t plus 1. This implies that z is equals to 1 upon t plus 1. यह हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब जो प्रॉब्लम डबल स्टार जो है हैज सॉल्यूशन विच इज ग्लोबली डिफाइंड. मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टार है उसके पास जो सोल्यूशन है वो हमारा ग्लोबली डिफाइंड है. सो नन ऑफ द स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सोल्यूशन. ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारे पास जो डबल स्टार प्रॉब्लम है उसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन डिफाइन कर गया. अब देखिए, देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर स्टार. इसमें बोला गया कि स्टार प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, बट हमारा तो एग्जिस्ट नहीं किया, ये भी डिस्कार्ड हो गया. फोर्थ वन इज डबल स्टार प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और देयर एग्जिस्ट अ टी less than infinity such that limit t tends to t modulus of yt tends to plus infinity. अब अगर yt हमारा आया था, yt था 1 अपॉन 1 माइनस टी, अगर t हमारा 1 को अप्रोच किया तो लिमिट t टेंड्स टू 1 मॉड्यूलस ऑफ yt, ये आ जाएगी हमारे पास प्लस इन्फिनिटी. सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जहां पर डबल स्टार प्रॉब्लम के लिए तो ग्लोबल सोल्यूशन हमारा डिफाइन हो रहा है और हमें एक कैपिटल टी की वैल्यू हमें ऐसे मिल गई जिसके लिए जब स्मॉल टी हमारा 1 को अप्रोच करेगा तो मॉड्यूलस ऑफ वाई टी हमारा प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा एसएलपी पर बेस्ड है. हमें पार्ट सी में पूछा गया था, टू पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन है y डबल डैश प्लस लैम्डा yx इज इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 5 एंड कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0 हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू 0. इस प्रॉब्लम के पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और इस प्रॉब्लम के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी है. तो हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए ऐसी वैल्यू लैम्डा की कौन सी होगी जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा. वही चीज कि लैम्डा के पास हमारे 3 पॉसिबिलिटी है, लैम्डा हमारा पॉजिटिव होगा, लैम्डा नेगेटिव होगा या फिर लैम्डा 0 होगा. हम तीनों ही केस डिस्कस करेंगे.
तो सबसे फर्स्ट केस है जब लैम्डा हमारा जीरो होगा, जब लैम्डा हमारा जीरो होगा तो वाई डबल डैश जीरो हो जाएगा। यहाँ से वाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा c1x प्लस c2। कंडीशन है y of 0 is equals to 0. This implies that c2 is equals to 0. Next, y of pi is equals to c1 pi which is 0. pi 0 हो नहीं सकता तो c1 को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से c1 0 है, यहाँ से c2 0 है, तो y of x कैसा आ गया 0, ट्रिवियल ही आ गया। बट हमें चाहिए था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 का केस तो हो गया डिस्कार्ड। नाउ सेकेंड केस, सेकेंड केस हम कंसिडर कर लेते हैं लैम्डा नेगेटिव। जब लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा की वैल्यू माइनस में म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। इसका जब सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा y1 yx is equals to c1 e raised to the power mu x plus c2 e raised to the power minus of mu x। अब हमें कंडीशंस लगानी है। y of 0 equals to 0 है c1 plus c2 is equals to 0। नेक्स्ट है y of pi is equals to 0, so c1 e raised to the power mu pi plus c2 e raised to the power minus mu pi is equals to 0। यहाँ से इम्प्लाई होगा c2 is equals to minus of c1। so इस इक्वेशन में हम c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, c1 e raised to the power mu pi minus c1 e raised to the power minus of mu pi is equals to 0। c1 कॉमन, e raised to the power mu pi minus e raised to the power minus of mu pi is equals to 0। so ये वाला फैक्टर हमारा हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो इससे क्या इम्प्लाई होगा c1 की वैल्यू 0। जब c1 हमारा 0 आ गया तो यहाँ से c2 भी 0 आ गया, c1 c2 दोनों ही हमारे 0 हो गए, तो y ऑफ x हमारा 0 हो गया। अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया, बट हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल, सो नॉन ट्रिवियल के लिए केस थर्ड, जब लैम्डा हमारा पॉजिटिव हो, लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा की वैल्यू म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो। सो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0 वेयर y ऑफ x सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा c1 cos of mu x plus c2 sin of mu x। y of 0 is equals to 0, this implies that c1 is equals to 0। next y of pi is c2 sin of mu pi which is 0। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो c2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन c2 must be non zero, तो sin of mu pi की वैल्यू 0 which is equals to sin of n pi where n belongs to z minus singleton 0। क्योंकि अगर n हमारा 0 हो गया तो mu की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बट हम कंसीडर करके चले mu is non zero, so n belongs to z minus singleton 0। mu pi is equals to n pi, mu की वैल्यू आ गई हमारे पास n where n belongs to z minus singleton 0। लैम्डा हम डिफाइन करके चले हैं म्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। नाउ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो लैम्डा की वैल्यू 1। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला है जब लैम्डा हमारा पॉजिटिव है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर है, सो थर्ड हमारा ट्रू हो गया, और जब n की वैल्यू 1 है सो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है इसके फर्स्ट नहीं सेकेंड एंड थर्ड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया, और क्वेश्चन है कंसीडर द सॉल्यूशन y1 3 क्रॉस 1 की हमें एक मैट्रिक्स गिवन है e रेज़ टू द पावर माइनस 3t e रेज़ टू द पावर माइनस 3t एंड 0, एंड y2 हमें गिवन है 0 e raised to the power minus 5t e raised to the power minus 5t to the homogeneous linear differential equation star
वाई डैश टी हमें डिफाइन किया गया है 3x3 की मैट्रिक्स है -5 2 -2 1 -4 -1 -1 1 6 minus of 6 and yt. Which of the following statements are true? The first one is y1 and y2 form a basis for the set of solutions. Second one है y1 and y2 are linearly independent but do not form a basis for the set of solutions. Third one is there exists another solution y3 such that y1, y2, y3 forms a basis for the set of solutions. And the fourth one is y1 and y2 are linearly dependent. हमें बोला गया कि जो y1 और y2 हैं वो हमारे इस होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं और जो सिस्टम है वो हमारा 3/3 का है। जब सोल्यूशन हमारा 3/3 का है तो इसके पास 3 एलआई सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। 3 एलआई सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो बेसिस में भी 3 ही एलिमेंट आएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि y1 एंड y2 फॉर्म्स अ बेसिस नहीं, इसके सॉल्यूशंस की बेसिस में 3 एलिमेंट आएंगे। सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ सेकंड की बात की गई है कि y1 और y2 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और फोर्थ में बोला गया कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। हमें पर देखने को से लग रहा है कि जो y1 और y2 है ऐसा कोई स्केलर c एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हम y1 को c टाइम्स ऑफ y2 लिख पाए। ऐसा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी c, ऐसा कोई c एग्जिस्ट नहीं कर रहा such that y1 is equals to c times of y2. So y1 and y2 are not LD, लीनियरली डिपेंडेंट हमारे नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में है y1 y2 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस। यस, क्योंकि अगर बेसिस बनना है तो एक और सॉल्यूशन की हमें नीड पड़ेगी जो बेसिस बनाएंगे। तो थर्ड है देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 such that y1 y2 y3 forms a basis for the set of solutions to star। हमें 3x3 है तो 3 एलआई सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो जो थर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा तो ये तीनों मिलकर एक बेसिस बना लेंगे फॉर द सेट ऑफ सॉल्यूशन। सो थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया था। लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λn and corresponding linearly independent eigenvectors are v1 v2 up to vn। देन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट x dash t is equals to a x t plus e raised to the power lambda 1 t v1। फर्स्ट ऑप्शन है does not have a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a for any vector a belongs to Rn. Second one is a has a solution of the form e raised to the power lambda 1 t e for some a belongs to Rn. Third one is has a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a plus t e raised to the power lambda 1 t b for some a b. Fourth one is does not have a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a plus t e raised to the power lambda 1 t for any vector a b belongs to Rn। सो हमें बोला गया कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसके सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो भी हमें गिवन है। अगर ये जो कंडीशंस हैं वो होल्ड हो रही है तो हर पॉसिबल ए के लिए होगी। हम ए को कंसीडर कर लेते हैं 1x1 की मैट्रिक्स विच इज 1। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हर नॉन जीरो वेक्टर वो जो होगा वो हमारा आइगन वेक्टर बनेगा। एवरी नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू Rn। सो हम कंसीडर कर लेते हैं v की वैल्यू भी 1 कि ए कोई मैट्रिक्स है 1x1 की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो भी हमने 1 कंसीडर कर लिया और इस केस में लैम्डा 1 क्या आई 1 आ गई। तो जो हमारा सिस्टम है वो कैसा बन जाएगा x डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस e रेज टू द पावर t। v1 की वैल्यू v1 है। सो ये सिस्टम क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सो x डैश ऑफ t माइनस एक्स टी इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर t।
इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस डी टी, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी। तो सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e raised to the power t, e raised to the power minus of t plus c. So x की वैल्यू आ गई e raised to the power t into t plus c e raised to the power t। अब सिर्फ हमें इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट है does not have a solution of the form e raised to the power lambda 1 t a for any vector a belongs to Rn। हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, t into e raised to the power t plus c into e raised to the power t। सो हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म का नहीं है, सो यही बोला गया। सो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, हैज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म, बट हमारे पास सॉल्यूशन तो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड वन है हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म e raised to the power lambda 1 t a plus t e raised to the power lambda 1 t b for some vectors a b belongs to Rn। तो अगर हम इस केस में हमारे lambda 1 की वैल्यू 1 है, अगर हम देखें तो ए, तो ये जो सॉल्यूशन हमें ऑप्शन में बोला गया इसी टाइप का ही है। सो थर्ड हमारे करेक्ट हो जाएगा कि हाँ इस प्रॉब्लम के पास इस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर वेक्टर, फॉर सम वेक्टर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एन। फोर्थ वन इज डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म फॉर एनी वेक्टर ए बी बिलोंग्स टू आर एन, बट हमारे पास इस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो फोर्थ भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। फर्स्ट and third are the correct options. Thank you.